أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج بتاریخ 18 اگست 2024 روز اتوار. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے ویسی قدر نہیں کرتے. یہ قرآن مجید میں 3 جگہ ہے، 3 جگہ ہے. سورہ انعام 6 نمبر سورہ 91 آیت، الحج 22 نمبر سورہ 74 آیت، الزمر 39 سورہ 67 آیت. 3 جگہ ہے. ایک سے 2 دفعہ کوئی آیت آئی تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. نہیں اس کو غور کرنا کہ اللہ جو بات بول رہا ہے قدر بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہوں؟ تم اللہ کی جیسی قدر کرنا ان کا حق ہے، وہ ویسی قدر نہیں. اللہ کی قدر یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو چلے تو اللہ کے قدر. اگر اللہ کے احکامات پہ نہیں چلے اللہ کی قدر نہیں. اللہ کی قدر نہیں کرے، اللہ کے احکامات پہ نہیں چلے، جہنم ہے. اللہ کی قدر کا مطلب اللہ کے احکامات پہ چلے تو اللہ کی قدر ہو. تو اللہ کے احکامات پہ اگر چلیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ جنت میں لا، ورنہ ہم جہنم پہ جانے کے مستحق. واسطے قرآن کو غور سے سنو اور خود پڑھو بھی. پڑھ کے دیکھو اس میں کیا احکامات کیا ہے، وہ دیکھو پڑھو. ومن اصدق من اللہ حدیثا، سورہ نساء 4 نمبر سورہ ہے، 87 نمبر آیت ہے. اللہ کی بات سے سچی بات کسی ہو سکتی. جتنے بھی احکامات ہیں قرآن کے اندر جو بھی واقعات وغیرہ جو بھی ذکر کریں وہ سچے واقعات ہیں، سچے احکامات ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی برائی سے بچانے کے لیے. اب مثال کے طور پہ ہم قرآن کے اوپر نہیں چلیں گے تو ہمارا معاملہ کیا رہتا؟ دنیا میں بھی رسوائی ہوتی، دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا. دنیا جو ہے ہمارے لیے عذاب آج مسلمانوں کے لیے عذاب ہے، کیونکہ قرآن چھوڑ کے وشواس کیا تھا. قرآن چھوڑ کے دوسرے کتابوں کی طرف توجہ زیادہ رہتی اور اسی کی طرف ہم عمل کرتے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ جو بھی احکامات بتائے وہ احکامات پہ چلے تو کافی ہے. دوسرے کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے کی. اگر کوئی بولے ٹھیک ہے پہلے تو قرآن پہ مکمل عمل تو کر لو، اس کے بعد دیکھیں گے دوسری کتاب. یہ کتاب میں جو عمل کرنا ہے وہ عمل تو کر لو نا. پڑے اس کے اندر کے احکامات کیا ہے مسلمانوں کو معلوم نہیں اور وہ بتائے بھی نہیں. اس سے کہانیاں سنا کے جو ہے ہم کو کچھ کر کے دیا تو خاص توجہ رہتی قرآن کی طرف. ہاں بس تھوڑا بہت بتاتے ہیں پر احکامات کھول کے نہیں بتاتے. احکامات آج کا عنوان ہے تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور آج جو تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری اولاد کو آگ سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا جس کا ایندھن کا مطلب ہے چولہا جلانا ہے یا کوئی آگ جلانا ہے، لکڑیاں ڈال کے اس کو آگ الگ کی لکڑیاں ڈال کے آگ لگی نہیں لگتی گھاس پھوس کیا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انسان اور پتھر ڈال کے آگ لگے.
मामूली हमको जो है कोई आग का कुछ लग गया, चूल्हा लग गया, परेशान है, जल गए। वो तो क्या जलने के बाद फिर दवाएं लगाए, वो लगाए ठीक है। वहाँ जलने का मामला ऐसा है, जलना रहता, मुसलसिल जलना रहता, मुसलसिल। डरो, उस आग से डरो। बात फिर निकलने का नहीं रहता, उसमें से निकलने का नहीं। नीचे फर्श आग, छत आग, दीवारें आग, लिबास भी आग, पूरा आग ही आग रहता। डर क्यों नहीं होता समझ में नहीं। डरते नहीं, मनमानी जिंदगी गुजार लेते, अपने आप को तब्दीली नहीं कर लेते। तब्दीली कर लेना है, इंसान अपने जज्बात को ख़त्म कर देता, अपने ख्वाहिशात को ख़त्म कर देता। जब भी अपने ख्वाहिशात को ख़त्म कर दिए तो ही समझो हम कुरान की तरफ आए। अगर हम अपने ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अपने फितरत को नहीं बदले तो हम जहन्नम में वो करे, इनो करे, उनके वैसा हम भी करेंगे, उनके वैसा हम करेंगे, बल्कि जितना भी जो है दुनिया के मामलात में है और गुनाह के मामलात में, उसमें लज्जत रहती, अच्छा दिखता। अब एक को बनाना रहता, बनाना बोलते ना, उसको जो है ऐसे ऐसे बातें करके उसको ऐसा बोल देते कि उन्हें शर्मिंदा हो जाता। अल्लाह ताला जो है बल नहीं करना, इसको मज़ा आते रहता। सामने वाले को जो है बातें ऐसे करके जो है उसको शर्मिंदा करते, अल्लाह ताला बोल रहे वैसा नहीं करते। पूरे गुजरात है, गुजरात को पूरी तफसील है, देख लो आप, पूरे गुजरात उसके अंदर अहकामात है, पूरे देखो। वो अहकामात में हमारे लिए बहुत हिदायत है। यहाँ हम जो है थोड़ा बहुत बताएंगे। तो तुम अपने आप को, अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। सूरह तहरीम 66 नंबर सूरा 6 नंबर आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारता अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, किसको बोल रहे हैं? मुसलमानों को, जो अपने आप को मुसलमान बोले रहे ना, कुछ बोले रहे, दावा है मेरा कि मैं मुसलमान हूँ। अब मेरे को अहकामात बता रहे हैं अल्लाह ताला। अब तुम मुसलमान है, मोमिन है, अब चलो हम जो बताते अहकामात वो करो। वह बताएं तुम अपने आप को, अपने घर वालों को आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसानों पर। इसको बोल रहे हैं, मुसलमान को बोल रहे हैं तुम भी बचो, तुम्हारे घर वालों को भी बचाओ, तुम्हारे ख़ानदान वालों को बचाओ उस आग से, जहन्नुम की आग से बचाओ जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। अब कौन बचा? सब अपने अपने फिक्र में है, दुनिया की फिक्र में। मैं हूँ, मेरा काम है मेरी औलाद को इज्जत करना, उसको बताना, जहन्नुम से आग से बचाने के वास्ते अल्लाह के अहकामात को चलने के लिए बताना। हाथ पकड़ के तो ले जाने का तो कोई भी वो नहीं है, खाली बताना आगा का। उस पर दुरुस्त को जोरावर मलाइका हैं। जहन्नुम में जो मलाइका है, जो तर्जुमा फरिश्ते किए हैं, वो ऐसे हैं ताकतवर और जो है दुरुस्त, मतलब उनको हमदर्दी क्या है नहीं मालूम। जलने वाला जलते रहता, उन्हें बाहर निकलने को निकाल देते, बस उनका काम वही है, बाहर निकलने नहीं देता। अल्लाह जो हुक्म देता है उसको नाफरमानी नहीं करता। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? जो भी जहन्नुम में डाले उसमें से मत निकाल, नहीं करते, आगे डालते हैं। और वो करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। अल्लाह क्या हुक्म दिया? जो नाफरमान है, काफिर है, मुशरिक है, उनको डाल दो जहाँ।
और वहाँ पर निकलने का सवाल ही नहीं रहा। सूरह बकरा 2 नंबर सूरा 132 133 आयत नंबर है। अब यहाँ जो है अपनी औलाद को नसीहत करने के लिए जो अल्लाह ताला उसको बताए तो देखें, वस्सा बिहा इब्राहीम बनी ही व याकूब या बुनैया या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और वो वसीयत की इब्राहिम ने अपने बेटों को और याकूब ने भी अपने बेटों को, ऐ मेरे बेटों, अल्लाह ने बेशक चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन, बस तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान होना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अपने औलाद को नसीहत करे और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को अपने औलाद को नसीहत करे। तो ये बोले अल्लाह ने बेशक किया है तुम्हारे लिए दीन, कौन सा दीन? इस्लाम। अब वो मुसलमान है, हम मुसलमानों में पैदा है, खानदानी मुसलमान हैं, वो इसलिए लोग क्या करें, उनसे हमारे ताल्लुक़ नहीं है, उनके लिए हम दुआ करना उससे। अब हम मौजूद हैं, अल्लाह ताला हमको चुन लिया, दीन इस्लाम में है, बग़ैर किसी इसके जो है अल्लाह ताला हमको मुसलमानों में पैदा कर, हमको चुन लिया इस्लाम के लिए। तो उस बात को बोल रहे तुम्हारे लिए दीन यानी दीन इस्लाम, तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुस्लिम हो। मुस्लिम मतलब फरमा बरदार, अल्लाह ताला के अहकामात की फरमाबरदारी करते हुए मानो। मौत कब आती कोई नहीं पता। अब एक दफ़ा जो है अल्लाह के अहकामात पे चले, फिर जब अपना मफाद आया, अपने फ़ायदे का मामला आया तो जो है बातिल तरीके से जो है करे या गुनाह के काम करे, अपने हाथ, जिस्म, पैर, आँख तो जो है गुनाह की तरफ मुलविस कर दिए। इत्तेफाक समझो, अगर हमको मौत आ गई वैसे मौके पे तो हम किस हाल में उठेंगे? तो गुनाह करते हुए हाल में उठेंगे। हम पूरे जो इंसानों के सामने, अल्लाह के सामने हम क्या बताएं, क्या पेश करें? हम जमात में गए थे तो नलगुंडे के थे, अमीर थे, दोनों ऑफिसर थे, तो रोज़ाना पीते थे शराब, हर किस्म की शराब रहती थी उनके पास, पीते थे। अब उनको समझाने के बावजूद भी कई दिनों तक नहीं किए, पर एक दिन जो है उनको बात समझ में आई। अब उन्होंने बोले अगर मैं ये सो हालत में मर गया, नशे की हालत में अगर मैं मर गया तो रोज़े महशर में मैं नशे की हालत में क्यों उठूँगा? नशे की हालत में क्यों उठूँगा मैं? अब नशे की हालत में उठूँगा तो अल्लाह ताला हमसे क्या क्या हिसाब लेगा? तो हराम पीते हुए मरा ना, हराम पी रहा था तू, इस वास्ते उनको खौफ हो गया, एकदम डर गए। डर के क्या करे, वो जितने भी शराब के शीशे थे, एक अलमारी अलग थी वो उनकी, तो शराब के शीशे थे पूरे के पूरे जो है फेंक दिए, किसी को दिए नहीं। उस वक्त जो है हम भी जो है वो सीढ़ी वगैरह पीते थे, हमारी कोई बात समझ में आई, हम भी छोड़। जब कोई चीज़ समझ में आती ना, साथ ही छोड़ देना हो, रोकना नहीं। अब मिसाल के तौर पे मुर्गी है, मुर्गे को आप काटो, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के काटे तो वो हलाल है बोल के खाते। वही मुर्गी को अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं बोल के काटे, मालूम हो गया कोई मुसलमान को, वो पीने वाला हो दो, धोखा देने वाला हो दो, कोई भी हो दो, तो उन्हें खाता क्या हो? मुर्गी कोई भी नहीं खाता। मालूम हो गया कि वो जो है अल्लाह का नाम नहीं लिए, एक हिंदू कर दिया, बोले तो नहीं खाते हो। सेम काटा वही तरीक़ा, गोश्त वही है, हलाली से सब
मगर काटने में अल्लाह का हुक्म जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के काटो, वो नहीं काटा हमने। एक मुसलमान को मालूम हो तो उन्हें मालूम अरे नहीं फलाना हिंदू है, उन्हें नहीं काटता, मगर अल्लाह का नाम नहीं लेता, इस वास्ते उसका नहीं लेते, जिससे किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मगर शराब जो है वो नुकसान पहुंचाता है, खुद को पहुंचाता, घर वालों को पहुंचाता, समाज में बुराइयां पैदा होती। तो वो गौर करना हम कि ये चीज़ फ़ायदे की है, नुकसान की है। फ़ायदा छोड़ के और एक चीज़ उसमें देखना, हलाल है हराम। बातिल तरीके से झूठ मूठ धोखा दे के पैसे कमाएंगे तो यहीं दुनिया में फ़ायदा दिखेगा, अब आखिरत में सिवाय जहन्नम से कुछ नहीं। वास्तव सोचना हर मामले में, कोई गुनाह करने से पहले 100 दफ़ा सोचना, ये मैं करना नहीं करना, करे तो नहीं करे तो क्या नतीजा उसका। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ मज़ा आता सब, आखिरत में मज़ा पूरा निकल जाता जहन्नम। हम कुंतुम शहदा इस हज़रत याक़ूब अल-मौत इस क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहुन वाहिदन व नहनु लहु मुस्लिमून। और वसीयत की इब्राहीम, और क्या तुमने मौजूद थे जब याक़ूब को मौत आई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, याक़ूब अलैहिस्सलाम जिस वक्त मौत आई थी उस वक्त तुम वहाँ मौजूद थे क्या? तो नहीं थे, और वही के ज़रिए से हम तुमको बता रहे हैं कि याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की क्या वसीयत की थी, कि वही के ज़रिए से तुमको बता रहे हैं। तुमको नहीं मालूम है क्या है, नहीं मालूम, हमने बताया। जब उसने अपने बेटों को कहा मेरे बाद तुम किसकी अब्दियत और माकूमियत करोगे, आबुदो मेरे बाद, अरे मैं मरने के बाद तुम जो है किसके हुक्म मानो, किसके हुक्म पे चलो। अब्दियत का माना गुलामी करना, माकूमियत करना, हुक्म मानो, तो किसके हुक्म को फॉलो करोगे? तो उन्होंने कहा मेरे बाद तुम किसकी अब्दियत को महसूस करोगे? उन्होंने कहा, अपने बेटों ने कहा हम बंदगी करेंगे तेरे इलाह की। मेरे इलाह, मेरा जो अल्लाह है इसके याक़ूब है, उनकी बंदगी करेंगे, उनका हुक्म मानेंगे, इसके अल्लाह का हुक्म, किसी दूसरे का हुक्म नहीं मानेंगे। और तेरे बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल इसहाक़ के इलाह वाहिद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के अल्लाह इलाह है, उन्हीं की बंदगी करेंगे, उन्हीं के हुक्म पे चलेंगे हम। वो बोलते थे ना मेरे हुक्म पे चलो, याक़ूब अलैहिस्सलाम बोलते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे हुक्म पे चलो। जो इलाह मानते थे, अल्लाह को इलाह मानते थे, उन्हीं के हुक्म पे चलेंगे, दुश्मन के। और हम उसके मुस्लिम फरमाबरदार, किसके? अल्लाह के फरमाबरदार हैं, किसी दूसरे के फरमाबरदार। हम ये इसमें देख रहे हैं कि कुरान के अंदर ऐसी कुछ आयतें हैं क्या तो अल्लाह से हट के दूसरों के लिए हुक्म मानने का कहीं भी नहीं, कुरान में कहीं भी नहीं। अभी देखिए सूरे का नाम 153 आयत नंबर है, 6वां सूरा है, 153 आयत है। वो अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीम, और ये कि मेरा रास्ता सीधा है, अल्लाह का रास्ता बिल्कुल सीधा है। वत्तबिऊ, तुम इसी की इत्तिबा करो, इसकी अल्लाह ने जो वही नाज़िल की है उसी की इत्तिबा, वत्तबिऊ यानी उसी की है, कुरान की इत्तिबा करो। वला तत्तबिऊ सुबुल फतफर्रक़ु बिकुम अन सबीलिही, और ना इत्तिबा करो दूसरे रास्तों की कि वो तुम्हें उसके अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे।
قرآن سے ہٹ کے جتنے بھی راستے ہیں وہ کئی راستے ہیں. قرآن سیدھا راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. اسی ایک راستے پہ چلو. اگر تم نے کئی راستے پر کئی کتابیں، کئی اولیاء، کئی جو ہے انسان، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ سے چلیں گے تو اللہ کے راستے سے ہیں. آج پوری دنیا اللہ کے راستے سے ہٹی ہوئی، خالی اللہ بولتے اللہ کے راستے سے. احکامات کیا ہے؟ کیا ہے؟ بس ایک چند رسم و رواج کر لے رہے ہیں، اسی کو سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں. پکے مسلمان. بھائی اسلام ایسا مذہب ہے پیدائش سے لے کے موت آنے تک تم کیسا رہنا ہے پوری دنیا پوری قرآن میں ہے. تم ہر حرکت اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرو. تم گھر میں کام کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، دکان میں کام کر رہے ہیں، راستے سے چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سب کے لیے احکامات ہے کہ تم کیسا رہنا چاہتے. تمہارا جسم کیسا رہنا، تمہارے آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، دل پوری حفاظت کے ساتھ. عمر ایک دفعہ کرے ایک دفعہ چھوڑنے کا نہیں. ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنے کا نام ہے اسلام. اسی کے احکامات پہ چلے تو سمجھو اس نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم قانون توڑنے سے بچو. یہ اللہ کی وصیت ہے. اللہ وصیت کرے تم اس کے قانون کو توڑنے سے بچو. وصیت کا مطلب سمجھتے ہیں نا. ایک کام بولنا ہے تو خاص طور پہ بولتے ہیں کہ بتا تم ایسا ایسا کرو ایسا کرو. اللہ سارے انسانوں کو وصیت کر رہا ہے کہ تم بچو، کئی راستوں سے بچ جاؤ. صرف ایک راستہ ہے وہ قرآن ہے، تو قرآن پہ چلو. سورہ اعراف 7 نمبر سورہ 3 نمبر آیت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. تم اسی کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا ہے. کیا نازل کیا؟ قرآن. بس اسی کی اتباع کرنا، دوسروں کی کرنا ہی نہیں. کہیں بھی قرآن میں کہیں بھی نہیں. اس سے ہٹ کے بھی دوسروں کی اتباع کرو اور میں اتباع کرو اس کے سوا اور اولیاؤں کی. اولیاء بولے تو سرپرست، جن کی بات سننے سے ہم کو جہنم سے بچنا، جنت میں جانے کے بتا دیں. ایسا کوئی بھی نہیں بتا. ہاں بتائے بھی تو قرآن کے ذریعے سے اگر بتا رہا ہوں میں، قرآن کے حساب سے بتا رہا تو بہت اچھی بات. اگر اس سے ہٹ کے انہیں اپنے طور پہ انہیں کچھ احکامات بتایا تو سیدھا جہنم میں چلے جاتے. دوسرے اولیاء کی اتباع نہیں کرنا ہے. یعنی کس کی جو وہی نازل کی ہے قرآن ہے اسی کی اتباع کرو، دوسرے اولیاء کی اتباع مت کرو. پورے طور پہ ہے آئے قلیلا ما تذکرون. بہت کم نصیحت قبول کرتے ہیں، بہت کم لوگ مانتے ہیں. منمانی زندگی گزارتے دوسروں کے جو ہے دوسرے کتابوں کو، دوسرے انسانوں کو رب بنا لے کے جو ہے چلتے ہیں. نصیحت قبول لیتے ہیں. اللہ جو نصیحت کرا وہ نصیحت کو قبول کرتا. آئے تو غور کرو، دیکھو پورے لقمان 31 نمبر سورہ ہے، 12 تا 19 آئے 31 سورہ ہے 12 تا 19. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور ہم نے دی لقمان کو حکمت، اللہ کا شکر کرو، اور فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ صرف اپنے لیے کرتا ہے، اور جس نے ناشکری یعنی کفر کی تو بے شک اللہ بے نیاز تعریف کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے حکمت و دانائی
सूझ बूझ समझने की सलाहियत वो अल्लाह ताला किसको दिया? लुक़मान अलैहिस्सलाम। क्या मिसाल लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र करके अब हमको भी बता रहा अल्लाह ताला, तुमको भी हमने हिकमत व दानाई की ने दी, अरे सूझ बूझ समझने की सलाहियत दी। क्या अल्लाह का शुक्र है? आज मैं जो भी बोल रहा हूँ अल्लाह ने दी सलाहियत। अगर अल्लाह ये सलाहियत दे रहा है तो मैं नहीं बोल सकता। और याद रखो हर एक में सलाहियत रहती है। अब जिसका जो है दिमाग कमज़ोर रहता है वो अलग चीज़ है, और जिसका दिमाग सही है उसको हर आदमी समझ सकता है। कुरान को गौर से पढ़े तो हर आदमी समझ सकता है। वो अल्लाह ताला दिया हमारे लिए सलाहियत है। तो अल्लाह ताला बोले अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तुमको दानाई दी, समझ दी, अता की। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करे तो तुम अपने वास्ते अल्लाह का शुक्र अदा करे। अगर तुमने नाशुक्र की या कुफ्र की तुम अपने लिए करो। अल्लाह का शुक्र अदा करे तो अल्लाह ताला हमको और सलाहियतें देता जन्नत में। और हम कुफ्र करे अरे नाशुक्री करे तो अल्लाह ताला हमको इसको नाबूद करे। हमारी दुनिया में जो इज्जत व मुकाम जो है हमको बिल्कुल अल्लाह का हर मामले में अल्लाह का शुक्र अदा करें। मतलब ये कि मैं कुछ अच्छा काम करा, कुछ भी मैं अच्छा पढ़ा, मैं अच्छा काम करा, मैं अच्छा कुछ भी करा, अल्लाह दिए सो सलाहियत से करा। अल्लाह ताला वो दिया हमारी सलाहियत दिया तो मैं कर सका। घर में ही थी अब अच्छा सालन बना, वाक़ई तारीफ़ की है, अच्छा सालन बना, अच्छा खाना बना, जो भी करेगा साफ सफाई सब अच्छा है। ये अल्लाह जो सलाहियत दिया ना उससे करें हम। हमारे जहन में वो सलाहियत देने के बावजूद भी हम इस्तेमाल नहीं करें सही नहीं। वैसी दीन के मामले में भी हम और फिक्र करें हम तो हमको दीन खुले तौर पर समझ में आता। और फिक्र करो है तो अब हमारे जो समझाते भाई लोग बात अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, है ना। रसूल की इताअत भी बोलते हैं ना। कुरान में बेहिसाब आयतें ऐसी हैं, पूरे अहकामात अल्लाह ताला बता, वो अल्लाह ताला बता के फिर उसके बाद बोल रहे हैं अल्लाह और रसूल की इताअत। वो अल्लाह के अहकामात अल्लाह और रसूल की इताअत। रसूल की इताअत बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी उसमें नहीं है। रसूल की इताअत भी कुरान नहीं है। अब रसूल की इताअत अगर तुम जिन किताबों में देखेंगे तो कुरान को जहन में रख के कुरान पूरा अच्छा जहन में बिठा लेके तुम वो किताबें पढ़ो तो आपको पता चलता है। अब उसका देते लोग जो आलिम किस्म के लोग अच्छे किस्म के वो बोलते जो सही हदीस है ले लो, जो गलत हदीस है छोड़ो। सही हदीस गलत हदीस का मियार मेरे को क्या है? मेरे को हदीस जो सही दिखती दूसरे को गलत दिखती, और जो उसकी गलत हदीस जो है मेरे को सही दिखती। इंसान जो है तफरक़े में चले आता। आज जो दुनिया में जो बुराई पैदा हुई इसी तफरक़े से पैदा हो। मैंने हदीस निकाल के बताता, उन्हें बोलता ये सही हदीस है, अरे नहीं होती बोले तो नहीं मानता। सही हदीस। आज जितने भी फ़िरक़े बने उन हदीसों रिवायतों से फ़िरक़े बने। अगर खालिस एक कुरान रहता तो फ़िरक़े बनने का एक ही रहता इस्लाम मुस्लिम। आज जो है 300 के ऊपर फ़िरक़े बने हैं। 300 के ऊपर यहाँ हैदराबाद में देखो हरी टोपी, लाल टोपी, ब्राउन टोपी, सफ़ेद टोपी, वो टोपी वाले अलग है। फिर अहले सुन्नतुल जमात बोलने वाले में भी कई है, अहले हदीस वाले में भी 3-4 हो गया। हर एक में मनमानी है सब। एक बोलता तो नहीं बोलता, इन्हें एक बोलता। अहले हदीस में एक फ़िरक़ा है वो तावीज़ को फूकने को नहीं मानता, और एक फ़िरक़ा है वो तावीज़ों को गड्ढों को फूकने। हैदराबाद आने वाले हैं नहीं मानते। तो ये क्यों है?
انہیں حدیث سے بتاتا تو حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب فاتحہ کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے تو دودھ لا کے دیے تو کیا کرے دودھ لے کے کچھ پڑ گیا. تو کیا آپ نے پی کے وہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کو بولے ابو ہریرہ کو بولے اب سب کو پلاؤ, دودھ تھوڑا ہی ہے, اب سب پیٹ بھر کے پی لیے. آخر میں جو ہے لے کے آپ پی لے تو ختم. وہ فاتحہ ہے نا, اور کچھ ذکر ہی نہیں ہے کیا پڑھے گئے کچھ بھی نہیں. وہ غلط ہے. یہ حدیث کو لے کے ہم جو قرآن کے حساب سے معجزہ ہونا, معجزہ مطلب تھوڑا دودھ جو ہے زیادہ ہو گیا, 10-15 آدمی پیش اتنا دودھ ہو گیا, معجزہ ہوگا. تو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا ذکر ہی نہیں, ایک معجزہ کا نہیں ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ ہوا. اب ان سے پوچھ رہے ہیں اے رسول تم کیسے رسول ہو جبکہ اس سے پہلے انبیاء جو ہے معجزے بلا تم کیوں نہیں؟ وہ بولے میرے پاس معجزہ ہے. ایک آیت میں کئی آیتیں والے, اس کے باوجود بھی اس حدیث کو پکا یقین کرتے بڑے عالمہ معجزوں کا ذکر کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے, وہ آیت کیسے پوری ڈال دیتے, محجور کر دیتے. نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے نا, وہ حدیث کو نہیں مانتے کیا؟ حدیث کو نہیں مانے تو کافی. ارے بھائی پہلے قرآن کو تو سمجھو, قرآن کو اچھا سمجھو, قرآن پہ چلو, اس کے بعد دیکھیں گے. جب قرآن کو اچھا سمجھیں گے تو معجزے نہیں رہتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اب غیب, اب یہاں جو ہے ہر انسان غیب کی باتیں بتاتے ہیں, میری قسمت بتاتا ہوں, تم یہ کرے تو یہ ہوتا, یہ کرے تو یہ ہوتا, یہ کرے. پھر بول رہا ہے میں ملک نہیں ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں, اور میرے کو کچھ بھی علم نہیں ہے. جو کچھ وہی آتی ہے وہی میرے کو علم ہے, اس سے ہٹ کے میرے کو کوئی علم نہیں. اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اب تم لوگوں کے ساتھ, ارے عام کیا معاملہ ہوگا میرے کو نہیں معلوم. اتنا کلیئر بتانے کے باوجود بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں. کیونکہ پیچھے یہ ٹوپی, یہ لمبی داڑھی, یہ کرتا پاجامہ, تو دیکھ کے اب وہ ڈریس کو اس کو دیکھ کے متاثر ہوتے. اور اتنے بڑے عالم ہیں, وہ اتنے بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھے, وہ پڑھے, یہی رہتا. وہ کہیں بھی پڑھو, قرآن کے حساب سے بتا رہا الحمد للہ. قرآن سے ہٹ کے دوسری کتابوں کے حساب سے بتا رہا سمجھو گمراہ ہے. اتنا بڑا عالم ہے تو گمراہ ہے. ہم کو انہیں گمراہ ہوتا اور دوسروں کو بھی گمراہ. جہنم میں جو ہے بڑے بڑے عالموں سے اور یہ عام عوام سے بحث ہوتے رہتے. تو یہ لوگ بولتے ہیں ہمارے جیسے جو ہے جو عالموں کی بات سن کے جو ہے گمراہ ہوتا ہے, وہ بولتے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اگر یہ لوگ نہیں بولتے تو ہم گمراہ نہیں ہوتے تھے. اور جب جو ہے یہ جمعہ جو ہے نا وہ بولتے پہلے سے ہم گمراہی تھے, ہماری بات کئی بچے رہتے تھے. دونوں کی بحث قرآن کے اندر بتا جہنم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث دونوں کا. وہ بھی پڑھے تو اپنے کو سمجھنا. اس بات سے قرآن کو غور سے پڑھے, بات کلیئر ہو جاتی. یہاں کسی کی لمبی ٹوپی چھوٹی ٹوپی اس کو دیکھنا نہیں, لمبی داڑھی چھوٹی دیکھنا ہی نہیں. انہیں قرآن کے حساب سے بول رہا مان, قرآن کے حساب سے نہیں بول رہا اس کو ماننا ہی نہیں. انہیں کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بول رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, میں ایمان لاتا ہوں جو کچھ میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی نازل کیا. والمومنین, مومنین بھی نہ بکران وہی ایمان, اسی پہ ایمان ہے, دوسرے کتابوں سے
جب کتابیں تھے ہی نہیں. یہ جو ہے 100 سال 150 200 400 500 ہی تک لکھتے گئے. میرے ویسا تمہارے ویسا وہ آج ہم ان کو بڑے بڑے عالم بولتے. وہ عالم تھے کیا تھے ہم عالم کو نہیں. وہ لوگ جو لوگ بولے وہ لکھ لیے. وہ اپنے طرف سے نہیں لکھے. میں بولا بخاری صاحب تم بولے لکھے تم بولے لکھے ایسا سمو آدمیوں کے لکھے ہوئے خالی انہوں بولے لکھے. تحقیق کے تعلق سے بڑی لمبی چوڑی بحث ہے تو بیکار بحث ہمارے کو بیوقوف بنانے کا. یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی حدیث لکھتے تھے لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے یا وضو کرتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ صحیح حدیث ہے یا غلط حدیث ہے بتاؤ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے یا بالمصافحہ سامنے آ کے بتاتے یہ صحیح حدیث ہے بولے تو لکھو. اب وہ حدیثہ پڑھ کے دیکھو وہ حدیثوں کو دیکھ کے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو حدیث. ارے ہم کو بیوقوف بنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے کے بعد تم کو غلط بولنے کے بعد بیوقوف بنا. پھر ایک ہے 6 لاکھ حدیث جمع کرے 6 لاکھ میں 60,000 صحیح جو ہے کتاب 7,000 مطلب 5,93,000 حدیثوں کو رد کرے. 5,93,000 حدیثوں کو رد کرے غلط ہے بول کے ثابت کرے. ایسا بتا رہے ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میری تحقیق میں کچھ بھی نہیں. 2 حدیثیں جو جمع کرے وہی حدیثیں ہیں. کیونکہ اگر واقع 6 لاکھ میں سے 7,000 جمع کرتے قرآن سے ہٹ کے ایک بھی حدیث نہیں دیتی. جو سمجھ میں سب لکھیے کر وہ ان کا کام ہونا چاہیے. ہماری ضرورت نہیں ہے. ان سے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق ہے اللہ سے ہے قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات سے ہے وہی جو آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں قرآن کو لکھوا ہے. قرآن میں ذکر ہے اس کا مگر عالموں کو نہیں معلوم. ایک عالم صاحب میرے پوچھ رہے مفتی ہے عالم ہے انہوں پوچھ رہے ہیں قرآن میں کہاں ہے. اب وہ یاد نہیں تھا کیونکہ غور و فکر قرآن میں نہیں کرتے لوگ. حدیثوں میں فقہ میں پڑھ کے ہی جو وہ لوگ عالم بنتے مفتی بنتے. اگر یہ کام قرآن کی طرف توجہ لے کے کرتے آج ہم مسلمان کوئی گمراہ نہیں ہوتے. ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مسلمان ہو جاتی. جبکہ صحابہ کرام کے دور میں جو جتنے بھی اسلامی ملک جو کیا بولتے عطا ہوئے تھے وہ پورے ملکوں میں مسلمان ہو گئے تھے. اس کے بعد والے جو ملکوں کو فتح کرے مسلمان نہیں کرے. وہ لوگ اپنی حکومت کی فکر رہے ان مسلمان بنانے کی فکر نہیں. ایسا ڈکٹیٹر تھے وہ لوگ ان کے خلاف بولے تو ختم کر جنگیں ان کو مار یہ قتل و غارت گری کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. وہ ان کی حکومت اتنی بڑی تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی بھی. ظلم کے ذریعے سے بڑی بڑی حکومتیں قائم خلاف نہیں. دین کچھ بھی نہ تھا. وہ اپنے تخت اپنی کرسی کو محفوظ کرنے کے واسطے کیا کرنا ہے وہ نہ مسلمان دیکھے نہ غیر مسلم دیکھے کچھ بھی نہیں. مخالف دکھا اس کو ختم. آج جو ہمارے جو جمہوریت بول رہے ہیں جمہوریت میں بھی جو کتابیں لکھے ہیں جمہوریت میں آزادی ہے مگر یہ لوگ نہیں چلا رہے. پوری دنیا میں کوئی بھی جمہوریت نہیں چلا رہا. سب ڈکٹیٹر بنے ہوئے. ہر ملک اپنی منمانی چلتا. ووٹ حاصل کرنے کے واسطے کیا کرنا ہے سب کا جرم ہے. وہ اس کے باوجود بھی قرآن ویسے ہدایت ہے. اب 56 ملک ہے مسلمانوں. کوئی ملک بھی جو ہے قرآن کے اوپر چلنے والا ملک ہے نہیں. سعودی عرب کو بولتے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اگر جمعے کے خطبے میں
हुकूमत के खिलाफ अगर कोई बोल दिया उन्हें गायब पता ही नहीं रहता उसको, ना जेल में रहता ना कहीं भी रहता, ना कहीं भी। वो हाल है वहाँ, क्योंकि उनकी हुकूमत ख़ानदानी हुकूमत है। वो इस्लामी हुकूमत पूरी ख़ानदानी है। कुरान के हिसाब से बात करने वाले को सामने ला के उसको दिखाना पड़ता है। वोटिंग नहीं रहता। कुरान की फिक्र करने वाले, कुरान पे चलने वाले, कुरान को समझने वाले मुंतखब करते हैं ये आदमी होना, ये कुरान पे चलने वाला है, तो कुरान के हिसाब से हुकूमत करता हुआ तो उसको दिखाते मानेंगे। बस मैं बना, मेरा बेटा बना, मेरा पोता बना, मेरा वो बना, बस ये चलता है। इससे वो हुकूमत नहीं होती, इस्लामी हुकूमत नहीं। और हमने दी लुक़मान को हिकमत और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र करो। जो शुक्र करता है तो सिर्फ अपने लिए करता है, और जिसने नाशुक्र की यानी कुफ्र की तो बेशक अल्लाह बेनियाज तारीफ़ के खातिर है। मैं शुक्र करे तो उसको कोई फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं। मैं नाशुक्री करा, मैं कुफ्र करा तो अल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं होगा। गनी है, बेनियाज है, उसको कुछ नहीं। अब जो भी होगा मेरे हिसाब, मैं शुक्र करा तो मैं जन्नत में जाऊँगा, ना शुक्र करा मैं जाऊँगा, उसको अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो गनी है, तारीफ़ के खातिर है। वइज़ क़ाला लुक़मान लिब्निही व हुवा यऊज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और जब लुक़मान ने अपने बेटे से कहा और वो उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे बेटे तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरा, बेशक शिर्क एक जुल्म अज़ीम है। अब बेटे को सबसे पहले नसीहत क्या करे लुक़मान अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर कर, किसी को शरीक मत बना। शिर्क जो है बहुत बड़ा जुल्म, ये जुल्म अज़ीम है, बहुत बड़ा। शिर्क के ताल्लुक़ से इतना रहने के बावजूद भी शिर्क की अहमियत हमारे को बताती है। जो कर लेना है कर। अब एक मौलाना है, तुम जो भी करते ना, सजदा करो किसी के सामने, जो करना है कर लो, उन्होंने उसकी बताते ये जो है इस हिसाब से सही है, गलत कुछ भी नहीं, ये गलत नहीं है, वो गलत है, सब सही है। तो यहाँ समझ के बताते, तुम यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़ा है, उनको बताए, सब सही। हर काम को बताते हो, ऐसे ढंग से बताता हो जी हो, तो नारे तकबीर सब आएगी। फिर किसे को फिर अल्लाह के साथ पार्टनर करना। अल्लाह के साथ पार्टनर कोई भी हो सकता, मैं अपने नफ्सानी जज्बात हो, मेरे जज्बात भी पार्टनर हो। अल्लाह का हुक्म है शिर्क मत करो, और मैं शिर्क करूँ, मेरे को फायदा भी क्या है। अब मैं दरगाह को जाऊँगा, मैं झुकूँगा, मैं जब मन्नत मांगूँगा, वो करूँगा, मेरे को फायदा है। वैसे अल्लाह ताला जो है एक हुक्म दिया कि तुम अपने शादी करे तो तुम लड़की से खर्चा मत करो, तुम अपना खर्च कर निकाल। मेरी ख्वाहिश है लड़की से लेना है, जायज़ लेना है, खाना है, लोग क्या बोलेंगे नहीं करे तो वो अल्लाह का पार्टनर किसको बनाए, मेरे ख्वाहिशात को बनाए। ख्वाहिशात को बनाते हो, अल्लाह का पार्टनर मेरे ख्वाहिशात को, शिर्क हो। और शिर्क बोलते नहीं लोग, यहाँ तक कि हमारे उलमा बताते वो अगर उन्हें अपनी मर्ज़ी से दे दे तो ले सकते। अब मर्ज़ी से देना है तो कहाँ जाना, पैसे वाले घर को गए तो उन्हें मर्ज़ी से मन माने दे, यहाँ नहीं है जाओ, उन्हें दे सकना नहीं, कहने ले रहना भाई, ले रहे तो क्या नहीं, अपन वैसे घर को ला के ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हर एक जो है पैसे वाले होना, फला होना, फला होना, वही
फराख है, अच्छे हैं लोग, और नहीं, ये अपने ख्वाहिशात अल्लाह ताला को, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोला, क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपने ख्वाहिशात को इलाह बना दिया, अपने ख्वाहिशात को इलाह बना दिया, यानी अल्लाह के अहकामात को नहीं करता, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेता, वो अल्लाह का पार्टनर बना के, इलाह बना के, सिर्फ उसको बोला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमने हर चीज़ का जो है हमने माफ़ करेंगे सिवाय शिर्क के, सिवाय शिर्क के हर चीज़ को माफ़ करेंगे। तो अब यहाँ जो है हमारे उलमा बताते, बुखारी में भी है, अगर कोई शख्स जिना करा, चोरी करा, ये तो अल्लाह माफ़ कर देगा सिवाय शिर्क। जिना करना, चोरी करना अपने ख्वाहिश से कर रहा है, तो ख्वाहिश है मेरी, मैं काम नहीं करूँगा भाई, चोरी करूँगा, चोरी करे तो एकदम माल ज़्यादा आता, माल ज़्यादा आया तो मैं भी खाऊँगा, मेरे बच्चे खाएंगे। जिना कर रहा तो सिर्फ ख्वाहिश है तो कर रहा, मजबूरी तो कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हदीस के ज़रिए से ये लोग समझाते, तो ये होता कि अपने ख्वाहिश को इलाह बना दिया, वो इलाह कहाँ भी अपने ख्वाहिश आए तो समझो अल्लाह के साथ बात करना, यहाँ तक गौर करना। कोई जो है मंदिरों करने जा रहे हैं, दरगाह करने जा रहे हैं, पनाम झंडे कुंडे ये सब कर रहे हैं, इसमें शिर्क समझ रहा है तो नहीं, अपने ख्वाहिशात को भी रोकना। जब तक अपने ख्वाहिशात जज्बात नहीं रोके नजात नहीं मिलेगी, हम सिर्फ करते रहेंगे, इनकी बातों में आए तो चक्कर में आ जाते हैं, जानों में चले जाते हैं। जुल्म नज़ीम, इनमें शिर्क जुल्म नज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। वसैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसलुहु फिसालुहु फी मा आमैना अनिश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर। और हमने इंसान को ताकीद की कि उसके माँ बाप के बारे में, हर इंसान को अल्लाह ताला सारे इंसानों को बताया कि अपने वालिदैन के ताल्लुक से अल्लाह ताला वसीयत की, क्या वसीयत की? उसकी माँ ने कमज़ोरी पे कमज़ोरी झेलते हुए उसे पेट में रखा और 2 साल में उसका दूध छुड़ाया कि मेरा शुक्र कर और माँ बाप का भी मेरी तरफ से लौट कर आना। पहले जिक्र करें माँ बाप का, माँ बाप का शुक्र अदा करो, फिर उसके साथ माँ का जिक्र करें। 9 महीने अपने पेट में बच्चे रखती है, उसके बाद जो है तकलीफ से तकलीफ रहती है, उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल तक दूध देता है। और ये अल्लाह का शुक्र करो, माँ तकलीफ में तकलीफ रह के तुमको पैदा करेगी, खाली माँ का ही नहीं बाप का भी शुक्र करे, माँ की कर करे। तकलीफ माँ होना ही, उसके बावजूद बाप जो है उसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेता, उसका खर्चा करता, सुख करता, हर तरीके से उसकी हिफाजत करता, खाली बाप का घर छोड़ के नहीं रखता। यहाँ माँ और बाप का जिक्र करके माँ का जिक्र करो, तो उसका शुक्र करो, मेरा भी शुक्र कि अल्लाह ने इंसानों में पैदा करा तो खुद, और माँ बाप को उन्होंने तकलीफ झेलते हुए तो हमारे को पैदा किया और परवरिश करते। मामूली बात नहीं है, माँ बाप को परवरिश करना मामूली बात नहीं रहती, हर तरीके से उनको फिक्र रहती माँ बाप को, बच्चों को। बड़े होने के बाद बच्चे जो है क्या हो जाते, कई घरों का मामला तो ऐसा है कि माँ बाप को तवज्जो नहीं,
अल्लाह का शुक्र है अपने पास पैसा नहीं है। आइंदा तुम लोग भी जो है अपने माँ बाप की फिक्र करना हर वक्त, हर तरीके से जो है उसकी देखभाल करना। जैसा माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं वैसी बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल करते। जब बड़े होंगे उनको तवज्जो नहीं दिए तो जहन्नम में जाते हैं। याद रखो। वहीं जाहदक अला अंतुश्रक भी माँ लई सलका बिही माँ तुती हुमा व साहिब हुमा दुनिया मारूफन वत्तबु सजीला मिन अना मन अनाव इलैया सुम्मा इलैया मर्जीउकुम फनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। और अगर वो दोनों तेरे साथ कोशिश करें कि तू मेरा शरीक ठहरा है जिसका तुझे कोई इल्म नहीं तो उनका कहा ना माना। सुनो, अगर माँ बाप को शिरक का काम करते पहले से चले आ रहा खानदान में चले आते शिरक के काम करने के रहते हैं, तो शिरक का काम करने के उसमें अगर माँ बाप बोले तुम भी करो ये, तो अल्लाह ताला बोले उनकी बात नहीं सुनो, माँ बाप की बात नहीं सुनो। मैं कई बच्चों को देखा, मैं ख़ास तौर पर जहेज़ का जिक्र करूँ। अब जहेज़ नहीं रहा, आओ भाई जहेज़ लेना में क्या करेंगे, हमारे अम्मा बाबा नहीं सुन रहे, ऐसा नाफरमानी करेंगे। नाफरमानी नहीं करना बोल के अल्लाह ताला बोल रहे हैं, नाफरमानी करो। कब करो? अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो तुम मानना नहीं। हमारे माँ बाप कितने वो कुछ भी नहीं होता, पहले तो नाराज़ होते, बाद में कुछ भी नहीं होता। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ख़ानदान हमारे से बेजार था पहले, ये जो है उसमें नहीं आते, इसमें नहीं आते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, सब आज तो हमारे से अच्छे, कोई दुश्मनी नहीं। अब उनको मालूम है नहीं करते, अपन नहीं करते बोल के मालूम, उसके बावजूद हमारे से ज़्यादा बहुत अच्छे। अल्लाह ताला वो नहीं रखता, छोड़ने का काम नहीं करवाता, अच्छा रखता है। तो हम उनकी बात नहीं सुनना। तो मेरा शरीक ठहरा जिसका तुझे कोई इल्म नहीं तो उनका कहा ना माना। इल्म है नहीं ना हमको, माँ बाप बोल दिए करो बोले तो कर दिए, तो जब तक इल्म हासिल कर लेना, मालूम कर लेना, इल्म हासिल करके उनका कहा ना माना। और दुनिया के मामलात में उनके साथ मारूफ तरीके से होता है। दुनिया के मामलात में अल्लाह ताला बता रहे हैं उनके सामने उस तक मत करो। उसका मतलब हाथ उठा के ऐसा नजर मिला के देखना, तो ज़रा नाराज़गी से देखना, उसको बोल रहे। फिर वही बता रहे हैं अल्लाह ताला तुम अपने दो खांधे चुप के पैरों के सामने अकड़ के नहीं रहना, माँ बाप के सामने अकड़ के बात नहीं करना, चुप के तुम अपने दो खांधों को झुका लो उनके सामने, उस तक मत कहो। दुनिया के मामला मारूफ तरीके से जो तुम खाते तुम रखते एहसान करो का मतलब है तुम खाते पीते जो भी रहते उसी तरीके से उनको भी खिलाना पिलाना पहनाना करना। तो अक्सर लोगों के हम देखे, हम कुछ लोग के घरों में रहते मियाँ बीवी बच्चे जो है तल्ले का अच्छा खा लेते रहते, अम्मा बाबा को अपने पास नहीं है, बस हम बच्चों के अपने पास नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह लोग खा रहे हैं वो खिला रहे हैं। तो ये लोगों में बता रहा हूँ, उनको नहीं मालूम। ऐसे अहकाम को खोल खोल के समझाए तो मालूम होते वो अपने औलाद माँ बाप के साथ। अब गैर मुस्लिमों में तो पैसे वाले हो गए समझो, माँ बाप को जो है ओल्ड एज होम में ले आके याद हो पैसे दे देते भाई हमारे साथ में। ज़्यादा पढ़े लिखे बारह को मिल जाए, 12 में अच्छा पढ़ लिए, वहाँ रह गए, बच्चे बाहर, हम बाहर। ऐसी जिंदगी जो पढ़ाना है यहीं पढ़ाओ, बाहर गिर जाने की सोच ही करो। अच्छे से अच्छा पढ़ाओ, अच्छा से हो, यहीं रहते, अम्मा बाबा साथ में रहते, बच्चे साथ में। बाहर गए तो बाहर का हो जाता उन्हें उधर ही चिन्ह, और मर गए तो उन्हें अम्मा ना बाबा
तुम्हारे साथ कैसा आना कैसे भी हमारे बचपन की बात कर जंजल बूढ़े ने पढ़ा है बच्चों को, अमेरिका भेजा है पूरे बच्चे अमेरिका वहीं से। अब यहाँ नौकरानी को रखे, उसके नौकरानी को रखे, नौकरानी को रख के सब हर चीज़ की सहूलत, ऑक्सीजन का सिलेंडर, वो हर चीज़, कोई चीज़ की कमी नहीं है। इत्तेफाक से उन्हें जो है किसी काम की वजह से अपने गांव को गई उन्हें, तो उन्होंने बोले ठीक है तुम जाओ, मैं देख के तुम देख। इत्तेफाक से इंतखाब 3 दिन हो अंदर ही से घर में वो आना। अब जब उन्हें आए आके जो है अच्छा हमारे खोलने वाले छोड़ के ले गए। 3 दिन की लाश कैसे, क्या वो पढ़ा के क्या पढ़ा, वो पढ़ाई के साथ ये पढ़ाई होना, कुरान की पढ़ाई तालीम, तो वो दर्द था, महसूस होता कि माँ बाप के साथ कैसा रहना है। वो जाए थे वहाँ जो है, वहाँ क्या इसकी ज़िंदगी रहती, वो ज़िंदगी यहाँ नहीं गुजार सकते, खूब मज़े में रह सकते हैं इंसान, हर चीज़ की सहूलत है। यहाँ अगर 1 करोड़ रुपये महीने कमाए तो वहाँ की वैसी ज़िंदगी आने गुजार सकते, यहाँ सोच समझ के गुजार, वहाँ मनमानी ज़िंदगी रहती है, इसकी ज़िंदगी यहाँ नहीं कर सकते। इस वास्ते दुनियावी तालीम के साथ पुरानी तालीम होना जरूरी है। दीनी तालीम बोलते ना, दीनी तालीम पुरानी तालीम हो तो समझो वो आदमी सही रास्ता। उसके रास्ते की इत्तिबा कर जो रुजू करे मेरी तरफ, फिर तुम्हें मेरी तरफ ही लौट कर आना, तो मैं तुम्हें आगाह कर दूँगा जो कुछ तुम करो। अगर वो लोग अल्लाह के रास्ते की तरफ की रहनुमाई करें माँ बाप, तो वो रास्ते की तरफ चलो। वो लोग वो रास्ते से हट के अगर चले तो तुम मत चलो उनके रास्ते पर, माँ बाप के रास्ते पर मत अगर गलत रास्ता बताए, क्योंकि तुमको फिर मेरी तरफ ही लौट के आना है, नहीं फिर रोज़ महशर में अल्लाह के सामने हिसाब देना है। इस वास्ते तो मैं तुम्हें आगाह करूँगा जो कुछ तुम करो। वहाँ रोज़े महशर में तुमको बता दूँगा तुम अम्मा बाबा के साथ कैसे थे, दुनिया के मामलात में कैसे थे, दीन के मामलात में कैसे थे, तो वहाँ जो है रिकॉर्ड तुम्हारे बता दूँगा। या बुनैया इन्नहा अन तकू मिस्काल हब्बतिन मिन खरदिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति व फिल अर्ज़ याति बिहल्लाहु इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। ऐ मेरे बेटे, अगर कोई बुराई या गुनाह का काम एक राय के दाने के बराबर भी फिर वो किसी सख्त शैतान में हो या आसमान और ज़मीन में हो, उसे अल्लाह ले आएगा। बेशक अल्लाह बारिक बिन बाखर। तुम छोटे से गुनाह, छोटा गुनाह भी है, अब तुम किसी अंधेरी रात में है, पत्थरों के महल में भी रहेंगे, आसमान में जाके करेंगे, ज़मीन के अंदर जाके करेंगे, अल्लाह ताला रोज़ में मैं क्या करा सब सामने ला के करा। राय के दाने के बराबर भी अगर है तो सामने आ जाता। या बुनैया अक़िम सलात व अम्र बिल मारूफ व इन्हु अनिल मुनकिर वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बेटे, सलात कायम कर और अच्छे नेक कामों का हुक्म दे, बुरी बातों से रोक, और तुझ पर जो अफ्ताब पहुँचे उस पर सब्र कर, बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। सलात कायम, ऐ मेरे बेटे सलात कायम करे, पढ़ो नहीं है वो, अक़ीमुस्सलात, सलात का निज़ाम कायम कर। वो इंफरादी तौर पे सिंगल का नहीं होता,
ओरल है, मतलब तो मिल के करने का काम है। लोग मिल के सलाद को कायम करो और अच्छे कामों का हुक्म करो, बुरे कामों से रोको। कहीं भी देखे अपने अपने घर में ही है, समझो कोई बुरा काम कर रहा तो रोकना, अगर ये बुरा काम कर रहे तुम मत करो बोल, अच्छे काम को करो बोलते ताकीद करते हैं। तो और जो उस पर जो पहुँचे उस पर सब्र कर। सब्र करने का मतलब उर्दू सब्र में अरबी सब्र में फ़र्क है। उर्दू सब्र में तुम्हारे तो जो है खामोश हो जाना है, या कुछ तकलीफ है तो खामोश है। यहाँ जो है अल्लाह ताला इस्लाम से हटाने वाला, कितनी भी मुसीबत आए तो क्या भी आ जाए इस्लाम से नहीं हटना। अब भाई कैसे कर लीजिए, अब हालात ऐसे हैं ना, क्या होता बोल के बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। जो आदमी परेशानी में भी अल्लाह के अहकामात पे चलता वो बहुत बड़ी हिम्मत की काम है, मामूली बात नहीं। वला तासिर हद्दकन लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहन इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। और तू लोगों से बात करते हैं अपने रुखसार यानी चेहरे को टेढ़ा न कर और ज़मीन पर इतराता हुआ यानी अकड़ता हुआ न चल। बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता किसी अकड़ने वाले पकड़ करने वाले। कोई आदमी आके हमसे बात कर रहा है, गरीब है या कुछ भी है, आके अक्सर बात करें तो उन्हें बात करते रहे तो वो जब इधर देते अरे तवज्जो नहीं लेते। तो कोई भी बात करो तवज्जो से सुनना हो, अपने चेहरे की उधर नहीं होना। ये अल्लाह के हुक्म में फ़र्ज़ है। अगर फ़र्ज़ करो कोई बात कर रहा अपन तवज्जो नहीं लिए तो गुनाह में आ जाए और ज़मीन पे अकड़ के मत जाना। अक्सर लोगों का रहता करा जो है पैसे वाले हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गई, कुछ भी हो गए समझो, अब उन अकड़ के चल के बताते रहते दुनिया अकड़ के पकड़ करने वाला यानी अल्लाह बेशक पसंद नहीं करता, अरे अल्लाह मोहब्बत नहीं रखता किसी अकड़ने वाले पकड़ करने वाले। वक्त से मछली का वह मिन सौती का इन्ना अनकर अस्वाती सौती अमीर। अपनी रफ्तार में म्याना रवि इख्तियार करना यानी अकड़ के नहीं चलना न कमजोरी से चलना, म्याना रवि से चाल रखना इंसान चलता है यही नहीं। अपनी आवाज़ को पस्त कर, ऊँची आवाज़ से बात नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, वो नहीं करना। पस्त रख। बेशक आवाज़ों में सबसे नापसंद आवाज़ गधे की आवाज़, चीख चीख के बातें करते, चीख चीख के झगड़ा करते, अल्लाह ताला को है सबसे नापसंद आवाज़ गधे की आवाज़ से वैसा जो है मत करो। ये चंद आयतें हैं अल्लाह ताला के फजल से हमने कुरान के जरिए से सुने, इस पर अमल करने की कोशिश करो, कोशिश में बल्कि करो, अमल करो। अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे को अजर देगा, दुनिया में फ़ायदा है, आखिरत में जन्नत। अगर नहीं चलेंगे दुनिया में जिल्लत है, आखिरत में जन्नत। वाक़ई गाना अलहम्दुलिल्लाह।